میں برداشت میں بھی انسان. لوگ چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں یار یہ کیا, یار میں بھی تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوں. مجھے کسی نے بنایا, مجھے کسی نے نہیں, مجھے اس پروردگار. لوگ چلتے پھرتے مذاق کرتے ہیں کہ میں مذاق کے لیے پیدا ہوں. کوئی مذاق نہیں. میں وہ اسی امت کا ہوں جسی امت کا تم, اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں جس نبی کا تم پڑھتے. یہ میری سرکار نے فرمایا مذاق نہیں کرو, زندگی ایک مذاق نہیں ہے. میں بھی انسان ہوں, مجھے بھی چوٹ لگتی ہے, مجھے بھی درد ہوتا ہے کسی کی بات. میں نے بھی اس بارگاہ میں جانا جہاں تو نے جانا. اسی تو زمین پر چل رہا ہے, تو آکڑ کے چل رہا ہے, میں سر جھکا کے چل رہا ہوں. کیونکہ تیرے پاس دولت ہے, میرے پاس دولت نہیں ہے. میں کئی لوگوں کی باتیں برداشت کر کے زندگی گزار. کوئی بات نہیں بھائی, میں اس قابل نہیں ہوں. میں کسی کو جواب کیا دوں. کہاں سے کہاں زندگی لے جائے کوئی پتہ نہیں لگتا. در بدر کر دیتی ہے زندگی کسی. گلا ہے, کوئی شکوہ ہے؟ شکوہ کسی سے کیا کریں گے. بنانے والے نے زندگی کچھ اس طرح کی بنائی ہے. پھر شکر ہے اللہ پاک کی ذات کا, ہر چیز دی ہے اس نے. شکر ہے اس مالک کی ذات کا, اس مولا کا بڑا کرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, دس از عامر شہزاد. کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین, آج ایک رویے میں تبدیلی نظر آ رہی ہوگی آپ کو. ناظرین, اس کے پیچھے ایک وجہ, ایک شخص کی کہانی ہے, ایک شخص کی زندگی ہے ناظرین. اور وہ شخص جو دنیا میں دھتکارا گیا ہے, اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک نظام ایسا بن چکا ہے ناظرین کہ ہمارے لوگ کروڑوں کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, اور 10 روپے 20 روپے کمانے والے شخص کو ہم دھتکار دیتے ہیں. اس کے پیچھے کی وجہ نہیں سمجھ پاتے کہ اس کا پورا خاندان اسی 10-20 روپے یا جو بھی وہ مزدوری کر رہا ہے یا کچھ بیچ رہا ہے. کوئی پاپ کارن بیچ رہا ہوتا ہے, کوئی جناب والا اخبارات بیچ رہا ہوتا ہے, کوئی پھول لیے پھر رہا ہوتا ہے, پھولوں کے گجرے وغیرہ بیچ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے بہت بڑی, جس سے وہ یہ کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ ایک حلال طریقے سے کمانا چاہتے ہیں, اور وہ اپنی کمائی کو حلال بنا رہے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ مانگنے سے بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے کچھ کیا جائے, اور خود کوئی چیز ایسی سیل کر کے پیسے کما کے رزق حلال کما کر اپنے بچوں کو کھلایا جا سکے, اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالا جا سکے. ناظرین, اسی طرح ایک کہانی ہمارے ساتھ آئی ہے رحمت صاحب کی. دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں اندر انہوں نے جو بیان کیا ہے, دل کو دہلا کے رکھ دیا اس کہانی نے. ناظرین, دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ ویڈیو, اور اس کے بعد باتیں کرتے ہیں اس پہ. میں برداشت میں بھی انسان. لوگ چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں یار یہ کیا, یار میں بھی تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوں. مجھے کسی نے بنایا, مجھے کسی نے نہیں, مجھے اس پروردگار. لوگ چلتے پھرتے مذاق کرتے ہیں کہ میں مذاق کے لیے پیدا ہوں. کوئی مذاق نہیں. میں وہ اسی امت کا ہوں جسی امت کا تم, اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں جس نبی کا تم پڑھتے. یہ میری سرکار نے فرمایا مذاق نہیں کرو, زندگی ایک مذاق نہیں ہے. میں بھی انسان ہوں, مجھے بھی چوٹ لگتی ہے, مجھے بھی درد ہوتا ہے کسی کی بات. میں نے بھی اس بارگاہ میں جانا جہاں تو نے جانا. اسی تو زمین پر چل رہا ہے, تو آکڑ کے چل رہا ہے, میں سر جھکا کے چل رہا ہوں. کیونکہ تیرے پاس دولت ہے, میرے پاس دولت نہیں ہے. میں کئی لوگوں کی باتیں برداشت کر کے زندگی گزار. کوئی بات نہیں بھائی, میں اس قابل نہیں ہوں. میں کسی کو جواب کیا دوں. کہاں سے کہاں زندگی لے جائے کوئی پتہ نہیں لگتا. در بدر کر دیتی ہے زندگی کسی. گلا ہے, کوئی شکوہ ہے؟ شکوہ کسی سے کیا کریں گے. بنانے والے نے زندگی کچھ اس طرح کی بنائی ہے. پھر شکر ہے اللہ پاک کی ذات کا, ہر چیز دی ہے اس نے. شکر ہے اس مالک کی ذات کا, اس مولا کا بڑا کرم. السلام علیکم جی. ڈیلی پاکستان کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے.
मैं फिर दोस्त मार्केट इशारा जो कि लाहौर में वाक़ एक जगह है, वहाँ से गुज़रता हूँ अक्सर, तो मुझे एक शख्स वहाँ पर नज़र आया जो कि आप मेरी सेकंड विंडो में देख रहे हैं। इसका नाम रहमत अली है और इसका जो पूरा चेहरा है वो झुलसा हुआ है, जला हुआ है। हुआ कुछ यूँ था कि 3 साल की उम्र में इसने हाथ से बुना हुआ जो ऊनी स्वेटर होता है जो हमारी दादी या नानियाँ बनाया करती थी, वो इन्होंने पहना हुआ था। ये चूल्हे के पास गए और वो सिलेंडर का एक धमाका हुआ और उस धमाके की जो आग थी उसने इनके उस ऊनी स्वेटर को अपनी लपेट में लिया। ये 15 से 20 मिनट तक जलते रहे उसी आग में, जिसके बाद आप इनके हाथ भी देख सकते हैं। ये इनकी एक हाथ की सारी उंगलियां पिघल गई उस दर्जा हरारत में, अंगूठा पिघल गया, दूसरे हाथ का अंगूठा पिघल गया, 2 उंगलियां जो हैं वो डैमेज हुई। जब भी मैं इनको फिर दोस्त मार्केट के इशारे पर देखता था तो ये जिस तरह एक इंसान किसी को कोई पहचान लेता है, तो इन्होंने 2 से 4 दफ़ा जो है मुझे हाथ हिलाया। इनके हाथ में न्यूज़पेपर होते हैं जो कि ये वहाँ पर सेल आउट करते हैं, और जिस तरीके से अक्सर वहाँ पर जो फुकरा हजरात हैं उनके हाथों में, गदागरों के हाथों में कोई ना कोई चीज़ होती है, लेकिन वो बेचने के पर्पज़ के लिए नहीं होती है, एक्चुअली वो मांग ही रहे होते हैं। मैंने खैर शीशा नीचे किया और मैंने 20 रुपये इनको देना चाहे, इन्होंने इनकार कर दिया लेने से। इन्होंने कहा जी मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने आपकी बड़ी वीडियोस देखी हैं, तो अगर आपने अखबार चाहिए शामी साहब तो आप ले लें, मैंने पैसे नहीं लेने आपसे। तो मैंने कहा नहीं, आप अखबार भी रख लें, आप वैसे ही पैसे जो हैं अपने पास आप रख लें। तो इन्होंने वहाँ पर मुझे एक बात कही, मेरा ज़मीर जो है वो गवारा नहीं करता, मैं आपका फ़ैन हूँ, मैं सिर्फ इसलिए इनकी मोहब्बत है। खैर एनीवेज मुझे इनकी बात बड़ी अच्छी लगी। हुसैन चौक की तरफ मैं गाड़ी मोड़ने लगा तो लेफ़्ट साइड पे ही हमारा एक पेट्रोल पंप है यूरो का, मैंने इनको गाड़ी में बिठाया और वहाँ पर ले गया, चाय शाय पी इनके साथ। मैंने इनसे पूछा ये सारा मामला है क्या। वो स्टोरी इतनी दर्दनाक है, वो इतनी दर्दनाक है, जब आप सुनेंगे और आप इनकी गुफ्तगू सुनेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये शख्स जो है वो चिट्टा अनपढ़ है, स्कूल के दरवाजे के आगे से नहीं गुजरा। इसने कहा कि जब मेरा चेहरा झुलस गया तो स्कूल वालों ने ये कहकर मेरे वालिदैन को मेरा स्कूल छुड़वा दिया कि हमारे बच्चे डर जाएंगे अगर तुम वहाँ पर इस चेहरे के साथ आओगे। उसके बाद इन्होंने कहा कुछ गरीबी भी थी पतों की कि ये रिहायशी हैं, तो मैं पढ़ नहीं सका। फिर एक जॉब के सिलसिले में एक लेडी ने इनसे वादा किया कि वो जॉब दिलवाएंगी, और जब वहाँ पर ये 3-4 दिन गए तो उसके बाद इनको ये कहकर निकाल दिया गया कि हमारे कस्टमर तुम्हारा चेहरा देखकर ख़राब होंगे। अल्लाह ताला तो अपनी किताब में फरमा रहा है कि मैंने इंसान को खूबसूरत तरीन शक्ल में पैदा किया। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके और इनके दरमियान कोई भी बीच में खलल ना बनूँ या कोई खला का किरदार अदा ना करूँ। बहुत शुक्रिया रहमत, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू करते हैं, बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू करते हैं, लेकिन आज उस पार एक मेरे से भी बहुत बड़ा इंसान बैठा है जिसने मुझे शर्मिंदा भी कर दिया, और मैं उसके लिए आपसे माजरत भी चाहता हूँ। मैं उसके बारे में जो सोच रहा था। तो कैसी ज़िंदगी गुजरी है आपकी, स्टोरी है क्या, ये झुलसे कैसे, उंगलियां पिघली कैसे, मैं चाहता हूँ अपनी ज़ुबानी बताएं आप। मैं एक छोटा सा बच्चा था, तकरीबन 2.5-3 साल का था। तो हमारे उधर ना गांव में अक्सर शकरकंजी आपको पता है खाने के लिए लोग होते हैं, बड़ा चूल्हा लगाया हमने ना, मतलब उधर ईंटें लगा कर बड़ा पतीला रखा हुआ था उधर। तो उधर मैंने हाथ का बुना हुआ स्वेटर पहना हुआ था, अपनी माँ के हाथ का बना हुआ। तो उधर 5-7 हम कज़न खेल रहे थे, तो खेलते खेलते ना मुझे एक साइड से आग लग गई है। एक साइड से आग लगी है तो तकरीबन 15-20 मिनट में मैं वहाँ पे जलता रहा हूँ, हाथ मारता रहा हूँ कि बचाओ बचाओ। सिलेंडर वगैरह भी फटा था? सिलेंडर था नहीं था, लेकिन आग लगी हुई थी, सिलेंडर टाइप थी। तकरीबन छोटा ही सिलेंडर था उस टाइम। सिलेंडर लोगों के पास चंद ही होते थे, हर आदमी के पास सिलेंडर नहीं होता था, इतने आम नहीं थे सिलेंडर। लेकिन वो आग इस तरह की थी कि सिलेंडर से भी बुरी थी। जो मेरे कज़न से वो सब भाग गए, उन्होंने समझा कि यार जिनके माँ बाप समझेंगे कि हमने आग इनको लगा दी है। छोटे बच्चे भागे, डर से बच्चे भागे, डर से भागे, उन्होंने बताया ही नहीं है घर में उसे आग लगी। हमारे पड़ोसी की औरत आई है, उन्होंने बताया कि आपके घर से धुआं लेकर, आपको नहीं पता चला? वो उनका नहीं, मुझे तो नहीं पता। उस धुएं में आपका जिस्म जल रहा था? जिस्म जल रहा था, मेरा जिस्म था टोटली तकरीबन ये जला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, चेहरा भी। अभी तो ये सर्जरी मैंने करवाई है, अल्लाह का। शोल्डर से कहाँ तक जला हुआ? ये यहाँ से तक लिया नीचे तक। उंगलियां कितनी पिघली थी वो भी दिखाएं। ये पिघली हुई है सारी, ये तकरीबन पहले इस तरह थी, अब ये मैंने ऑपरेशन करवाया, अभी ये खुलवाई है सारी। अच्छा, ये बंद हो गई थी मुट्ठियाँ? ये मुट्ठियाँ बंद थी। अभी ये मैंने जुना हॉस्पिटल से तकरीबन 10 साल पहले खुलवाई हैं। ऊपर करके उंगलियां दिखाएं जरा। ये सर, ठीक है। ये तकरीबन मैंने 10 साल पहले भी ये इलाज करवाया था। मुझे
हॉस्पिटल ले गया, डॉक्टर ने कहा 36 घंटे निकाल गया भाई आपका बच्चा, तो ये ठीक है, वरना नहीं तो ये अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। तो उनका दुआएं करें, बस दुआओं का ही असर मिल सकता है, नहीं तो वरना आपके बच्चे की जो कंडीशन है। उम्र कितनी थी आप? कि मैं मेरी 2.5-3 साल थी। 3 साल थे। स्कूल का क्या वाकया हुआ था? 5-6 साल का हुआ तो मैं स्कूल में गया, तो उधर तकरीबन पहले एक तो टीचर था अच्छा, उसने कहा चले मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने 3-4 टीचर मिलकर कहने लगे यार ना इसका तो चेहरा ख़राब है, तो बच्चे ना इनसे डरेंगे, तो इनसे प्राइवेटली आप पढ़ाना चाहें तो इनके घर जाके पढ़ा सकते हैं, या मतलब अलहदा कोई इनके लिए। उनका यार बच्चे डरेंगे तो निकाल दें इनको। फिर फिर कुछ गुर्बत भी थी और गरीबी भी थी घर के अंदर। वाले साहब जो थे मजदूरी करते थे, कभी लग जाती थी कभी नहीं लगती थी। और उनकी कितनी आमदनी भी नहीं थी, उसकी तकरीबन थी इतनी कि उस टाइम 70-80% उनकी मजदूरी मिलती थी। तो वो जो हमारा घर का 70-80 रुपये तकरीबन बनते थे, तो वो हमारे घर का राशन ही तो मतलब पूरा होता था। वो ही कमाने वाले थे, तब वो उनकी उस दिहाड़ी से हमारा घर चलता था। तो इतनी आमदनी नहीं थी ना तकरीबन हमारे पास। इतने सासे थे जो हम बेच कर या कोई। सबसे बड़े थे बहन भाई? उसमें बड़ा था मैं, सब में से 3 छोटे हैं, अभी मैं एक बड़ा हूँ। छोटी बहनें? हाँ 2 बहनें, छोटी उससे छोटा भाई है। शादी हो गई उनकी? हाँ उनकी 2 बहनों की शादी हो गई है। तो मेहनत करके अल्लाह का शुक्र है मैंने उनकी शादी आपने की इन दोनों बहनों? हाँ दोनों बहनों की शादी की है, अपनी मेहनत से करके। ये अखबार बेच के? हाँ बेच के अखबार बेचा है मैंने, तकरीबन काफ़ी अरसे से बेच रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं? अल्लाह का शुक्र है अभी उनके पास वो अपने अपने घर में है। आपने शादी की? हाँ मैंने भी शादी की है, मेरा तकरीबन 2 साल का बेटा है मेरा अपना। अच्छा एक बेटा है आपका, माशाल्लाह। और शादी किस खातून के साथ हुई आपकी? जी मेरी कज़न ही है, दूर की रिश्तेदार है, लेकिन बहुत अच्छी है। जो मेरे जैसे इंसान के साथ शादी की है तो वो अच्छा ही हो सकता है। वो नहीं तो आजकल क्यों हो यहाँ पे अच्छे खासों को छोड़ जाते हैं, तो मैं तो फिर एक जला हुआ इंसान। तो नहीं, आप तो इतने अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं जो हमारी बहन है वो सुन रही है, तो मैं उसको जी दोनों हाथों से सल्यूट करता हूँ। तो वो मतलब उसने कभी आपको ये महसूस नहीं होने मुझे दिया? महसूस ही नहीं होने दिया आज तक। नहीं, मैंने तकरीबन 6 साल हो गए मेरी शादी को, मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं जला हुआ हूँ। उसने मुझे ये फील नहीं करवाया, कभी ये नहीं कहा कि आप जले हुए हैं, हमारे पास करीब ना हो, ये ना करो, वो ना करो, फलां ना करो। इस तरह के जिस तरह के मतलब आप नॉर्मल हर इंसान के साथ रहते हैं, तो उसी तरह की मियाँ बीवी की कभी लड़ाई हो जाती है, गुस्से में बीवी भी बहुत कुछ कह देती है। लेकिन जब भी मेरी आज तक एक बार तुम्हारी लड़ाई हुई है उसके साथ, क्या हुआ बस उसने कहा मैं के जाना, तो शादी थी बस। उसके बाद थोड़ी सी ओवर टॉक, मैंने उसकी ये कहा कि आज के बाद मुझे ये ओवर टॉक नहीं करनी, तो उसने कहा कि कोई मसला नहीं है। तो यार वो बड़ी अच्छी है, बहुत फरमाबरदार है। उसके लिए कोई पैगाम है अपनी वाइफ? वो तो दोनों हाथों से सलाम है, मेरे काबिल इतराम है हमारे लिए। तो अच्छी हम सफर है। हम सफर इस तरह की हम सफर तो अल्लाह पाक सबको दे, जिस तरह की मुझे अल्लाह पाक ने हम सफर जिंदगी में। नौकरी वगैरह कहीं अच्छी अप्लाई की थी? बस नो चेहरे की वजह से आदमी कहते हैं यार चेहरा नहीं ठीक है, तो शोर के लोग कई मजाक भी उड़ाते हैं, दिल पर दुखता है। क्या कहते हैं? खुदा की कसम तब देखते हैं, अपनी तरफ देखता हूँ और खुदा की तरफ देखता हूँ कि जब इस उम्मत के बाद में तो आपके पास आऊँगा ना, तो इस उम्मत की शिकायत करूँगा। मजाक उड़ाते हैं, भरोसे हश्र अल्लाह की बारगाह में उनकी शिकायत लगाएंगे। हाँ मैं बर्दाश्त, मैं भी इंसान। लोग चेहरा देख के कहते हैं यार ये क्या, यार मैं भी तो अल्लाह ताला ने बनाया हूँ, मुझे किसी ने बनाया, मुझे किसी ने नहीं, मुझे उस परवरदिगार। लोग चलते फिरते मजाक करते हैं क्या मैं मजाक के लिए पैदा हूँ? कोई मजाक नहीं, मैं उसी उम्मत का हूँ जिसी उम्मत का तुम, उसी नबी का कलमा पढ़ता हूँ जिस नबी का तुम। ये मेरी सरकार ने फरमाया मजाक नहीं करो, जिंदगी एक मजाक नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी चोट लगती है, मुझे भी दर्द होता है किसी की बात। मैंने भी उस बारगाह में जाना है जहाँ तूने जाना है, उसी तो जमीन पर चल रहा है, तू आकड़ के चल रहा है, मैं सर झुका के चल रहा हूँ, क्योंकि तेरे पास दौलत है, मेरे पास दौलत नहीं है। मैं कई लोगों की बातें बर्दाश्त करके जिंदगी गुजार, कोई बात नहीं भाई, मैं इस काबिल नहीं, मैं किसी को जवाब क्या दूं।
کہاں سے کہاں زندگی لے جائے کوئی پتہ نہیں لگتا، در بدر کر. اگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کچھ ایسے الفاظ بچے نہیں ہیں جو کہ میں کہوں، اور میں تو کہتا ہوں وہ اپنی ہسٹری سنا رہے تھے لیکن ایک وے ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ نے زندگی لائف گزارنی کیسے ہے. آپ کے پاس بھی ایسی سٹوریز ہوتی ہیں تو ناظرین ان کو سامنے لایا کریں تاکہ ہمارے معاشرے کو پتہ چل سکے، ہم مل کر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں جس میں ایسے لوگوں کو جو کہ اور اس سے زیادہ ہیلپ کو ڈیزرو کرتے ہیں ان کی بہت زیادہ ہیلپ کی جائے اور انہیں اس طرح دھتکارا نہ جائے. ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کامنٹ باکس میں آپ ضرور آگاہ کیجیے گا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اور بہترین ویڈیو کے ساتھ. تب تک رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ ناظرین.